students. Today we will begin with the first chapter of Beehive book, The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is an American writer and professor. So whatever stories he had wrote are having the connection between the science and the fiction. In this story also he had scientifically wrote about the schools of the future, how the schools of the future will be according to him. So it is an imaginative type of story. It is not a realistic story. It is an imaginative type of story. So according to him, as watching our development in the field of science and technology, Isaac Asimov thinks that there will be schools in the future with virtual classrooms, because the students no need to come to school for getting the knowledge. They will get the knowledge from the home only. I think so you are now are having some idea about this, because from last 4 months you are not going to school, but still you have not stopped your studies. You are getting your study material, you are getting your knowledge from the other source of modes such as computers, laptops and mobiles through the internet connection by sitting at the home. आई थिंक सो वही ना, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा कि वर्चुअल क्लासरूम किस टाइप के हो सकते हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स मतलब क्या है कि आप जो अभी 4 महीने, अभी कोरोना वायरस की वजह से आप 4 महीने से स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन आपका स्टडीज़ रुका है क्या? नहीं रुका है. आपने स्टडीज़ करना चालू रखा है थ्रू द मोड ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आपने स्टडीज़ आपके जारी रखे हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल क्लासरूम. अभी टोटली उस वैसा फेज नहीं आया है जैसा इन्होंने बताया है 2157 में, जैसा कि अब 2157 में टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है. तो वो कहाँ से लर्न कर रहे हैं बच्चे? फ्रॉम द मूविंग टेक्स्ट, फ्रॉम द मूविंग ई टेक्स्ट. स्कूल ऑफ द फ्यूचर कैसा है? दे आर हैविंग वर्चुअल क्लासरूम्स, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स. और सबसे मेन बात, वहाँ पे कोई इंसान नहीं पढ़ाता है. नो ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू टीच देयर. At that time, the robotic teachers or mechanic teachers are going to teach the students, and they are going to read through the moving e-text. They are having the tally books, not the textbooks. Nowadays, you are having a textbooks from the which are the printed on the paper. You can read through this, but they are not having the textbooks. They are having tally books. This is the difference between the school of the future and now whatever you are learning, it is a difference. So before beginning the story, I would introduce you with the main characters of the story. Who are the main characters of the story? Maggie, who is 11 years old, and Tommy, who is 13 years old. These both are the main characters of the story. This story is written in 2157, almost 130 to 137 years after this age. So the story we shall read is set in the future, when books and schools as we know them will perhaps not exist. How children will study then? The diagram may give you some ideas, and even you are having some ideas, because due to this phase of the online learning, you have got the knowledge about this school of the future. So now let's begin with the lesson. Maggie wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. Why she is so shocked? Because she is not studying through the textbooks. She is not studying through the book. She is studying from the e-text, from the tally book. So she is very much shocked by looking at the real book. It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. मैगी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर भी जब भी छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर स्टोरीज पढ़ा करते थे प्रिंटेड पेपर पर से. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words.
that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. क्या है, जब भी उनको क्या ताज्जुब लग रहा था कि ऐसे वो पलट के देख रहे थे बुक को। क्यों पलट के देख रहे थे कि जब वो पीछे देखते हैं तो सभी वर्ड्स उसी जगह पे हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर एट द सेम प्लेस। ये उनको थोड़ा awfully funny लग रहा था रीड करने के लिए। Yee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी क्या बोल रहा है? Yee means क्या, what a waste, कितना वेस्टफुल है ये बुक, क्योंकि अभी पूरी एक ही बुक उनको पढ़ना है। ये बुक पढ़ने के बाद वो तो फेंक देते होंगे अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन मैं तो मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर कितने सारे बुक्स पढ़ता हूँ, मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़ता हूँ। फिर बाद में सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। कितना है, मार्गी क्या है 11 इयर्स की है और टॉमी जो है 13 इयर्स का है। फिर से मार्गी क्या बोल रही है, मुझे भी सेम वही लग रहा है, मैंने तो लेकिन मार्गी ने उतने टेलीबुक्स नहीं पढ़े होते हैं जितने कि टॉमी ने पढ़े होते हैं, क्योंकि मार्गी टॉमी से थोड़ी छोटी है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुझको ये बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो क्या बोलता है, मुझे मेरे घर पे मिली। वो उस एटिक में, मतलब एटिक क्या है, एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो क्या है एटिक, एटिक जो है एक छोटा सा स्टोर रूम जो स्टेयरकेस के नीचे होता है, इट इज कॉल्ड एज एन एटिक। और इसकी पहले एक क्रिंकली करके वर्ड था, क्रिंकली मीन्स विंकल जैसा, जैसा झुरीदार होता है ना वैसा विंकल, विथ मेनी फोल्ड्स और विथ मेनी फोल्ड्स or lines. These are some new words in this chapter. An attic. Attic is a space just below the roof. A space just below the roof. Just below the roof. Used as storeroom, used as or storeroom. Margie was scornful. No, sorry. Where in the attic? What's it about? वो क्या पूछ रही है, वो किस बारे में है, बुक किस बारे में है? तो टॉमी क्या बोलता है, बुक है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी क्या बोलती है, स्कूल के बारे में, मुझे तो स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है। स्कॉर्नफुली मतलब एक तिरस्कारी अंदाज में वो बोलती है, बिकॉज शी वाज हेटिंग द स्कूल। The next word is scornful. Please note it down, all the difficult words and all the new words whichever I am writing on the board. Scornful. Scornful का मतलब क्या है, showing you think something is worthless. Contemptuous. Contemptuous. Showing you think something is worthless. So school, what's there to write about school? I hate school. Who told? Margie told.
Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Why she is hating the school? It is given here. Why the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. At that time, they are the robotic and mechanical teachers. They are not human or human beings or man as a teacher. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and saying for the county inspector. जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको ज्योग्राफी पे टेस्ट दे रहा है और जिसमें वो एकदम पुअर परफॉर्म कर रही है। तो उसके मदर ने क्या किया कि उसको काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? वो एक मैकेनिक है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता है। मैकेनिकल टीचर में कैसे होता है कि उनको सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड ही इज व्हाटएवर ही इज मींस स्टडीइंग। जो भी बच्चा उसके सामने बैठ के पढ़ रहा होता है उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका जो है सेटिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट किया जाता है। जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है उसके एज ग्रुप के और IQ लेवल के अनुसार उसको सेट किया जाता है। तो इसका मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा होता है? उसको बार बार है ना टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा होता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. उसके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें dials और wires है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो क्या है? तो मागी का टीचर है ना 1 घंटे में रिपेयर होके आ जाता है। वो थोड़ा खुश हुई रहती है कि आप टीचर चला गए तो मतलब जल्दी नहीं आएगा, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर वो टीचर को 1 घंटे के अंदर रिपेयर कर देता है और उसको लाके रख देता है। तो और उसको मागी को सबसे नापसंदीदा चीज क्या है उस रोबोटिक टीचर में की जो स्लॉट मतलब कौन सा स्लॉट मतलब स्पेस, गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। एक स्पेस है, जगह है जिसमें उसको है ना उसको होमवर्क एंटर करना पड़ता है पंच कोड करके और उसके टेस्ट पेपर्स उसको एंटर करने पड़ते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little quick. Those things happen sometimes. I have slowed down it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Patted means क्या है? जैसे अपने को कोई शाबाशी देता है तो ऐसे पैट करता है अपने को, मतलब ऐसे थपकता है ना, अपने सिर पर से हाथ से हिलाता है, उस टाइप में उसने उसके हेड को पैट किया। तो क्या बोलता है मिसेस जोन्स, इसमें मागी की कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली जो प्रोग्राम ज्योग्राफी का प्रोग्राम है वो थोड़ा गियर्ड हुआ था। गियर्ड मीन्स क्या है? गियर करना मतलब एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, उसको एडजस्ट करना है। तो वो क्या है, उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई थी। अभी हम लोगों ने मार्गी के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको मीन्स 10 लेवल के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने उसका सेटिंग कर दिया है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई कि टीचर इतने जल्दी आ गए, क्योंकि उन्होंने टॉमी के टीचर को लेके गए थे तो वो 1 महीना नहीं आए थे और टॉमी बहुत मतलब खुशी होगा बिकॉज ही वॉज हैविंग नो वर्क फॉर 1 मंथ। अच्छा, मार्गी कौन सा सब्जेक्ट सीख रही है? ज्योग्राफी। और टॉमी कौन सा है? हिस्ट्री। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इसलिए वो टॉमी को पूछ रही है स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है? टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school
that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो क्या बोल रहा है पता है? अरे stupid, ये अपने टाइप का स्कूल नहीं है, ये है ना सेंचुरीज एगो का स्कूल है. वो ऐसे अपने आप को दिखा रहा है कि आई एम सुपीरियर एंड आई एम हैविंग ग्रेट नॉलेज, मीन्स लॉट ऑफ नॉलेज देन यू. जैसे आप आपके छोटे भाई या बहन को जताते हैं ना, अरे स्टूपिड, तुझको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐसे है वैसे है, ऐसे आप जताते हैं ना आपके छोटे लोगों को, आपसे जो एज ग्रुप से छोटे होते हैं, उसी टाइप में वो अपने मागी को बता रहा है. इन लॉफ्टीली राइट डाउन द वर्ड लॉफ्टीली. What is the meaning? In a superior way. खुद को सुपेरियर समझता हुआ वो बोल रहा है. Loftily, loftily. Please note down all the difficult words and get the meaning of it. Superior way. ये लॉफ्टीली कौन सा वर्ड है? इट इज एन एडवर्ब. एडवर्ब है, लास्ट में ly है ना, इसलिए ये एडवर्ब हो गया. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. Then, anyway, they had a teacher. तो पूछती है, ठीक है, मुझे पता नहीं है कैसे टाइप का स्कूल उनके ज़माने में था, क्या उनके पास कोई टीचर भी था? तो पूछ रही है. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. उनके अकॉर्डिंग रेगुलर टीचर कौन है? एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोटिक टीचर, एक रेगुलर टीचर है. तो बोल रही है, तो यहाँ पे मतलब अपने जैसे ही नॉर्मल टीचर, जैसे अपने यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है उस टाइप में टीचर नहीं थे उनके. उनको पता है एक इंसान सिखाता था. वैसे ताज्जुब से उसको बोल रही है. A man? How could a man be a teacher? Well, मार्गी क्या बोलती है? A man, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो क्या बोलता है कि जो एक मैन टीचर एज एन टीचर जो सिखाता था सेंचुरीज एगो, तो वो अपने बॉयज और गर्ल्स को थिंग्स देता था, होमवर्क्स देता था और उनके साथ में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करता था. A man isn't smart enough. एक मैन स्मार्ट हो सकता है? मागी को क्या लगता है, मैन कैसे स्मार्ट हो सकता है? अपना जो रोबोटिक और मैकेनिकल टीचर है, ही इज सो इंटेलिजेंट, मैन कुडंट बी इंटेलिजेंट. तो क्या बोलता है टॉमी? क्या बोलता है? श्योर ही इज. माय फादर नोज एज मच एज टीचर. तो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर भी एक टीचर की जैसे ही, मतलब लाइक मैकेनिकल टीचर से भी वो बहुत होशियार है. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वो बोलती है, मैं किसी एक स्ट्रेंज मैन को मेरे घर पे अलग नहीं करूँगी मुझे टीच करने के लिए. तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी जोर से हंसता है और बोलता है, यू डोंट नो मच मागी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो क्या बोलते हैं, मार्गी तुझको कुछ भी पता नहीं. एक्चुअल में ये कैसा है स्कूल कि वो अपने घर पे नहीं होते. अभी उसके घर पे टीचर रहता है ना, मैकेनिकल टीचर जो है उसके घर पे ही होता है. तो वो क्या बोलते हैं, मैं कोई किसी टीचर को मेरे घर पे कैसे, अनजाने एक स्ट्रेंजर को कैसे मैं सिखाने के लिए अलाउ करूँ? मैं नहीं अलाउ करूँगी. तो टॉमी क्या बोलता है, अरे बाबा ऐसा स्कूल नहीं होता है, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ पे सब किड्स गैदर होते हैं और वहाँ पे टीचर्स सिखाते हैं. मीन्स ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्कूल बिल्डिंग. Tanvi screamed with laughter. No, sorry, this one is completed. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. वो क्या बोलती है? All the kids learned the same thing. मार्गी पूछते, सब बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं? तो बोलते हैं हाँ, sure, if they were the same age. एक एज के बच्चे एक ही चीज पढ़ेंगे. Just like a classroom. एक क्लासरूम में आप सभी एक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं और आपको सबको एक ही सब्जेक्ट सिखाया जाता है. एट ए टाइम सबको सिखाया जाता है. तो बोलते हैं हाँ, एक एज के बच्चों को सेम ही सिखाया जाता है. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली.
लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है और फिट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ईच बॉय एंड गर्ल। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो बोल रहे नहीं बाबा ये वैसा स्कूल नहीं है, तुझको नहीं पढ़ना है क्या बोल, फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। वो क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ी है ना ऐसे बोला कि मुझे पसंद नहीं आया है। तो शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूस फनी स्कूल्स, उसको और पढ़ना था फनी स्कूल्स के बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अभी आधा ही पोर्शन पढ़ा ही नहीं होता तभी तक उसकी मम्मी उसको आवाज देती है मार्गी स्कूल, मीन्स स्कूल का टाइम हो गया है। Margie looked up, not yet mama, now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. और इसका अभी now अभी आओ तुम, और टॉमी का भी टाइम हो चुका है, मीन्स दोनों का स्कूल का टाइम हो चुका है। Maybe he had nonchalantly, maybe he said nonchalantly। टॉमी बोलता है maybe मतलब हाँ हो गया है। nonchalantly means showing not more interest, nonchalantly भी आप लिख लो word। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। मार्गी का स्कूल रूम कहाँ पे है, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू में ही उसका स्कूल रूम होता है, और मैकेनिकल टीचर तो ऑन बैठा होता है वेटिंग फॉर हर, उसके लिए वेट कर रहा होता है। और हर रोज का टाइमिंग उसका सेम होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड द संडे। बिकॉज why the timing is the same, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। बिकॉज की मम्मी क्या बोलती है, अगर रेगुलर आवर्स पे मतलब सही टाइम पे पढ़ाई करेंगे तो लिटिल गर्ल्स अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो क्या होता है, स्क्रीन पे सब इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आज जो है अरिथमेटिक का लेसन सिखाया जाने वाला है, एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस सिखाया जाने वाला है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो क्या बोल रहा है, कल का होमवर्क आप अपने प्रॉपर स्लॉट पे इंसर्ट कीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय। शी was thinking about the old school days when their grandfather was a little boy। वो तो अपने ख्यालों में खोई होती है कि अपने ग्रैंडफादर की स्कूल कैसी होती होगी। ऑल द किड्स फ्रॉम होल द नेबरहुड कम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल। वो सभी एक मूवमेंट्स याद कर रही है कि स्कूल कैसा होता होगा, कि नेबरहुड के सभी बच्चे अपने स्कूल के लिए जाने के लिए हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, मतलब स्कूल के आंगन में जमा होते हुए होंगे, और जब स्कूल खत्म होता होगा तो सब लोग साथ में घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सब लोग एक ही चीज़ सीखते हैं तो वो एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड द टीचर्स वेर पीपल, मतलब टीचर के साथ भी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। शी वॉज थिंकिंग लाइक दैट, शी वॉज बोर्ड बाय लुकिंग दिस रोबोटिक मैकेनिकल टीचर। उसको ये टीचर पसंद नहीं था, वो बोल रहा था कितने अच्छे दिन होते होंगे, कैसे दिन अच्छे होते होंगे कि हम लोग शेयर कर पाते हैं। ये कैसे है कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक इंसानी फितरत है कि वो अपने फीलिंग्स, अपने जो कुछ भी चीज़ें हैं वो शेयर करता है। उसकी एक हैबिट है कि शेयर करना एक दूसरे के साथ में। तो अगर वो शेयर नहीं कर पाता होगा अपने फीलिंग्स वगैरह तो वो बेचैन होता है। सेम द सिचुएशन इज हियर, शी कांट शेयर हर फीलिंग्स विथ हर टीचर, विथ हर क्लासमेट्स, सो शी इज लाइकिंग द फन दे हैड एट द centuries ago। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen many adds, fractions, half and quarter. Margie was thinking about how the kids must love it in the old days. She was thinking about the fun they had. So we have completed the lesson. I hope कि आपको भी आपका स्कूल याद आ रहा होगा
एंड जो कुछ भी आपने फन आपके स्कूल में किया है वो आपको याद आ रहा होगा. So I will give the answers of the all below activity on WhatsApp. Please check it through and please note down it in the tuition notebook. And whatever difficulties if you are having, please reply to me on the WhatsApp or on my given number personally or on the group. Please feel free to share your difficulties with me so that I can solve your problems. Thanks for cooperating and watching my video. Thank you, students.